میرا نام ندا ہے اور میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے اور میری عمر تقریباً 21-22 سال ہے۔ ایک دن میرے شوہر کے ایک دوست کا فون آیا۔ وہ میرے شوہر سے کہہ رہا تھا کہ یار میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ تب میرے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا دائم؟ اس نے بتایا کہ میں شہر نوکری کے لیے آ رہا تھا، رات کو جب میں اسٹیشن پر رکا تو میرا سارا سامان اور پیسے چوری ہو گئے۔ اگر تم مجھے 1 مہینے کے لیے اپنے گھر میں رہنے دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہیں کمرے کا کرایہ دے دیا کروں گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس میں کہنے والی کیا بات ہے، ویسے بھی میرا ایک کمرہ خالی ہے، تو تم سیدھا میرے پاس آ جاؤ۔ شام ہوتے ہی وہ آ گیا اور ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں دائم ہم لوگوں میں اس طرح سے گھل مل گیا کہ جیسے وہ کوئی باہر کا آدمی ہی نہ ہو۔ وہ میرے قریبی رشتہ دار کی طرح لگتا تھا۔ اس دن میں نے خوبصورت اور آرام دہ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جب میرے شوہر کے دوست نے مجھے دیکھا تو ان کی نگاہیں میری طرف ٹھہر گئیں۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، بھابی آپ تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو چھو لیا۔ ان کا محبت بھرا برتاؤ مجھے عجیب لگا لیکن ساتھ ہی اچھا بھی۔ اس رات شوہر کے کمرے میں بوریت اور غصے کے بجائے اس کے دوست کے ساتھ گزرا ہوا وقت میرے لیے خاص تھا۔ اس رات اندھیرے میں جب میں نے شوہر کے دوست کو اپنے کمرے میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو مجھے لگا آنے والا میرا شوہر ہوگا، مگر میرے سامنے میرا شوہر نہیں بلکہ شوہر کے دوست کھڑے تھے۔ اس وقت میں رات کی ڈریس میں تھی۔ میں نے امید کی تھی کہ دروازے پر میرے شوہر ہوں گے، لیکن سامنے تو اس کے دوست تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہو گئی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس ڈریس میں سب سے پہلے میرا شوہر مجھے دیکھے گا، لیکن جو میں نے اپنے شوہر کے لیے کیا تھا اس کا لطف اس کے دوست لے رہے تھے۔ وہ تو مجھے ایک الگ ہی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن تب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، بھابی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے پانی بھی نہیں دو گی کیا؟ میں نے ہنس کر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اور سر جھکاتے ہوئے کہا، جی ابھی لاتی ہوں۔ میں کچن کی طرف بڑھی لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور انہیں دیا۔ وہ پانی پیتے ہوئے مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اس نے کہا، بھابی آپ کا یہ روپ تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی نرم آواز میں کہا جانے والا یہ جملہ مجھے اور بھی بے چینی میں مبتلا کر گیا، اور پھر میں ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے جلدی سے ساڑی پہنی اور باہر آئی۔ میں نے شوہر کے دوست کو چائے دی۔ وہ ابھی بھی مجھے اسی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، بھابی آج کیا خاص بات ہے؟ شاید میں غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ اب انہوں نے سب کچھ دیکھ ہی لیا تھا تو ان کو گھر کی باتیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج میں نے آپ کے دوست کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز رکھا تھا۔ ان کے کام کی وجہ سے انہیں وقت نہیں مل پاتا۔ ہم دونوں یہاں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو ٹھیک سے وقت نہیں دے پا رہے تھے، اسی لیے آج کچھ الگ کرنے کے لیے میں نے ان کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان کی دلچسپی بنی رہے، اس لیے کبھی کبھار کچھ سرپرائزز پلان کرنے چاہیے۔ یہ میں نے کل انٹرنیٹ پر دیکھا تھا اور آج میں نے اسے آزمانے کی کوشش کی، لیکن دیکھو نا تمہارا دوست وقت پر آیا ہی نہیں۔ اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، وقت کی کمی تو آج کل ہر کسی کو ہے، لیکن آپ نے بہت اچھا سوچا۔ آپ کی کوشش قابل تعریف ہے۔ میں اپنے دوست سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ اس کی باتوں سے مجھے تھوڑی سی راحت ملی، لیکن دل میں ابھی بھی تھوڑی سی بے چینی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب وہ اپنے کمرے میں جائے گا، لیکن وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا اور جانے کا کوئی اشارہ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بھابی آج دن بھر کا کیا پروگرام ہے؟ کہیں باہر جانے کا پلان ہے یا گھر پر ہی رہنا ہے؟ میں نے تھوڑی جھجک کر ساتھ جواب دیا، نہیں آج تو بس گھر پر ہی رہنا ہے، لیکن اگر آپ کچھ وقت کے لیے رکیں گے تو اچھا لگے گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تھوڑا وقت یوں ہی بیٹھتا ہوں، ویسے بھی کافی وقت ہو گیا ہے آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے۔ میں اندر جا کر اور کچھ سامان تیار کر لے آئی۔ ہماری بات چیت کا ماحول اب تھوڑا عام سے لگنے لگا تھا۔ ہم گھر اور خاندان کی باتیں کرنے لگے۔ میں اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک میرا شوہر گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھ سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 گھنٹے پہلے گھر آ جائے گا، لیکن وہ 2 گھنٹے دیر سے آیا تھا۔ اگر وہ وقت پر گھر ہوتا تو اس کا دوست یہاں نہیں بیٹھا ہوتا۔ تب مجھ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں دیر سے آیا، کام میں کچھ زیادہ ہی وقت لگ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ دل میں غصہ تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اس وقت کو سکون سے گزارنا بہتر ہوگا۔ میں نے بات چیت کے عام رکھنے کی کوشش کی۔ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر میں کچن میں چلی آئی۔ دونوں کی ہی باتیں چل رہی تھی اور میں کچن میں کھانا بنانے لگی، لیکن دل میں ایک ہلکا سا تناؤ تھا، یہ سوچ کر کہ شوہر کا دوست اتنے لمبے وقت کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ گھر کے ماحول میں کہیں کوئی بے چینی نہ آ جائے۔ شوہر اور اس کے دوست کی باتیں سننے کے دوران میں نے کھانا تیار کیا اور کوشش کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے خود کو اس صورتحال کے لیے تیار کیا کہ اب ہمیں 1 مہینے کے لیے ایک ساتھ رہنا ہوگا اور اس دوران تمام حالات کو آسانی سے سنبھالنا ہوگا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو میں نے دونوں کو بلایا اور ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میرے شوہر نے بات چیت کے دوران نوٹ کیا کہ میں کچھ چپ چپ سی تھی اور اس نے دھیرے سے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس یہ سوچ کر رہی تھی کہ آپ کا دوست اتنے وقت کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ شوہر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، فکر نہ کرو، وہ جلد یہاں سے چلا جائے گا۔ رات کو جلدی کام نمٹا کر میں کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی میرا پارا چڑھ گیا تھا، کیونکہ جو بستر میں نے محبت کے لمحے گزارنے کے لیے سجایا تھا اس پر میرا شوہر زور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ سجے ہوئے بستر کو دیکھ کر کیا اسے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں بستر کو کیوں سجایا ہے؟ اسے بیوی سے زیادہ نیند کیوں پیاری تھی؟ اس وقت میں غصے میں بالکل اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں باہر ہال میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہال میں بیٹھ کر میں خود سے ہی بڑبڑاتی رہی اور مجھے شوہر کے دوست کا بھی خیال نہیں آیا،
लेकिन वो कुछ देर बाद मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे पता भी नहीं चला। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं अचानक से चौंकी। क्या हुआ भाभी? उसने धीरे से पूछा। आप इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हैं? कोई परेशानी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। उसके सवालात के जवाब देना मुश्किल लग रहा था क्योंकि मैं खुद ही अपने जज्बात को नहीं समझ पा रही थी। मैंने कहा कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ नींद का मामला है। उन्होंने संजीदगी से कहा, आपकी आंखों में कुछ और ही कहानी दिख रही है। उनकी बातों में कुछ तो था जो मेरे दिल को छू गया। शायद वो सही थे। मेरे अंदर की बेचैनी और गुस्से ने कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात शुरू की। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं उसका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की तरफ ले गई। वहां मैंने उन्हें वो सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। वो बोले, अरे तुमने बिस्तर बहुत अच्छी तरह सजाया है। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी। मैं गुस्से में उस कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, मैं आपको सिर्फ सजाया हुआ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। मैं गुस्से में क्यों हूं लगता है आपको समझ नहीं आया। तब वो बोला, भाभी आपके चेहरे से मुझे सब कुछ समझ आ गया है। यकीनन वो बिस्तर आपने अपने शौहर के साथ मोहब्बत भरे लम्हे गुजारने के लिए सजाया था, लेकिन आपका शौहर अब वहां जोर जोर से खर्राटे मार रहा है। मैंने कहा, मैंने आज का दिन कितना खास बनाने के लिए कोशिश की थी। उसने मेरी सारी ख्वाहिशात पर पानी फेर दिया। उसने कहा, भाभी इतना मत सोचो, ये रात आखिरी रात नहीं है और वैसे भी आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं पल भर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कई महीनों से मैंने शौहर की जबान से अपनी खूबसूरती के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आदमी को काम में मसरूफ रहना चाहिए, लेकिन काम के अलावा भी घर में बीवी होती है। उसे ये ख्याल रखना चाहिए था कि उसका खुद का खानदान भी है। बात करते करते मैं उसके साथ बहुत वक्त गुजार लिया था। तब उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और फिर वो बोला, तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना। तुम जो भी चाहती हो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल लूंगा। मैं तुम्हारे शौहर को भी समझा दूंगा। उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल हल्का हो गया तो मैं अपने कमरे में गई और शौहर की तरफ पीठ करके सो गई। अगले दिन रोज की तरह शौहर टिफिन लेकर अपने काम पर गया। शौहर के दोस्त अभी भी घर पर ही थे। उसने कहा कि उन्हें दोपहर में ऑफिस जाना है। शौहर के दोस्त 42 साल के थे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत हैंडसम थे। उन्होंने अपनी बॉडी को भी काफी अच्छा बना रखा था। उस दिन वो नहाकर बाहर आए तो उन्हें देखकर मैं तो शर्मा ही गई। इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को अच्छी तरह से फिट किया हुआ था। वो मेरे सामने बगैर शर्ट के खड़े थे। उन्हें ऐसा देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे शर्माता हुआ देखकर वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो पूरे कपड़े पहन कर आया। जब वो घर आया तो मुझे थोड़ा उससे बोरिंग महसूस हो रही थी, इसलिए अब वो मेरे साथ घर में थे तो मुझे घर भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मेरे इर्द गिर्द है। उस दिन मेरे शौहर के दोस्त ने ऑफिस जाने से पहले मुझे आइडिया दिया था। उसने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वो बोला, भाभी कल मैंने जल्दी आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था। आज रात में थोड़ी देर से घर आऊंगा। अगर जरूरी हुआ तो मैं बाहर ही खा लूंगा। तुम अपने शौहर के साथ वक्त बिता सकती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझाया। मुझे डिनर को रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह पता था। उसी वक्त मैंने अपने शौहर को फोन किया। शायद वो काम में मसरूफ था, इसीलिए उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज किया। मुझे लगा कि मैसेज देखेगा तो वो जल्दी घर आ जाएगा, इसीलिए मैंने शाम को अच्छी तैयारी की थी। शाम हो गई लेकिन शौहर ने पूरे दिन में मेरा कोई कॉल नहीं उठाया। उसने मेरे मैसेज का जवाब सिर्फ ओके दिया था। इससे मुझे समझ में आ गया था कि आज वो जल्दी घर आ जाएंगे। वो जल्दी घर आया, ये देखकर मैं खुश हो गई कि वो मेरे लिए जल्दी आया है। लेकिन आते ही शौहर मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन ये सब के लिए मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकी क्योंकि वो पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था और वैसे भी वो मेरा ही शौहर है। उनसे जबरदस्ती करना या किसी भी चीज की जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। आज शौहर के साथ वक्त गुजारने का आखिरी मौका नहीं था, इसीलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे खामोशी से कमरे में सोने दिया। उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम करने के बाद मैं बैठकर टीवी देख रही थी। रात के 12 बजने वाले थे। शौहर के दोस्त अभी घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन करने का सोचा कि उसी वक्त घर का दरवाजा खुला और वो अंदर आ गया। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उसने कहा वो खाना खाकर आया है। उसी वक्त उसने कहा कि क्या हुआ भाभी, तुम्हारा शौहर नहीं आया? तब मैंने कहा वो आ भी गया और सो भी गया। तुम्हारा कैंडल लाइट डिनर का आइडिया भी बेकार ही गया। उसी वक्त शौहर के दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने मुझसे कहा, भाभी तुम इसी तरह से मुस्कुराते देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी हंसी में ही सारी दुनिया है। उसकी बात सुनकर मैं सच में मुस्कुरा उठी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे जज्बात को समझ रहा है, मेरी परवाह कर रहा है। हमने पार्क में बैठकर बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक किया और पुराने गाने भी गुनगुनाए। वहां से लौटते वक्त हमने एक दुकान से कुछ खाने की चीजें ली और चाय पीते पीते वापस लौटने लगी। उसी वक्त शौहर के दोस्त ने कहा, भाभी मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। उसी वक्त मैंने भी अपने दिल की बात शेयर की। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आते हो। थोड़ी देर में हम घर पहुंच गए थे। फिर वो अपने कमरे में चला गया और उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। हर रोज ऐसे ही टाइम पास होने लगा। शौहर के दोस्त का ऑफिस का वक्त दोपहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक का था और इसलिए वो सुबह से काम में मेरी मदद करता था। जिस तरह से वो मेरी मदद करता था
शायद ही कोई ऐसा करेगा। मैंने उससे कहा जो भी तुमसे शादी करेगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। वो मुस्कुरा कर रह गया। एक दिन मैं अपने शौहर के कपड़े धोने के लिए जा रही थी, तब मुझे उसकी पैंट की जेब से एक टिकट मिला। मैंने उससे पूछा ये टिकट किस लिए, तुम कहीं जा रहे हो? तब उसने कहा ऑफिस से मुझे ये टिकट मिला है, ऑफिस में पार्टी है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि शौहर मुझे भी साथ ले जाएगा। मैंने उससे कहा अच्छा पार्टी है तो फिर हमें कब निकलना है? तब शौहर बोला पार्टी ऑफिस के मुलाजिमीन के लिए है, वहां फैमिली नहीं जा सकती, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। ख्वाब देखना बंद करो, पार्टी के लिए मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूँ। अगले दिन मेरा शौहर चला गया। वो 3 दिनों के लिए गया था। उसने कहा कि पार्टी 1 दिन की है, लेकिन इसके बाद 2 दिन ऑफिस में उसका कुछ काम है। उसके जाने के बाद शौहर के दोस्त के साथ मैं घर में अकेली थी। इसी दौरान उसके दफ्तर में भी कोई पार्टी थी। उसी वक्त उसने कहा भाभी आप घर में अकेली क्या करेंगी, आप भी मेरे साथ चलें। फिर मुझे वो अपने साथ पार्टी में ले गया। एक तरफ मेरा शौहर था जो मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था, दूसरी तरफ वो था जो मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। इस पार्टी में वो मुझे इस तरह से अपने साथ घुमा रहा था कि जैसे मैं उसकी बीवी। पार्टी शुरू होने से पहले वहां अवार्ड फंक्शन था। उसे बेहतरीन काम करने पर अवार्ड मिला था। अवार्ड लेने के लिए वो मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गया। वो मुझे हर छोटी चीज में शामिल कर रहा था। पार्टी से घर आते वक्त मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर गए थे, वो तो तुम्हारा पर्सनल पार्टी थी ना। उसने कहा अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी सिर्फ मुलाजिमीन के लिए नहीं होती, इससे पहले हमें अपने खानदान को भी साथ ले जाना होता है। ये पार्टी में आने से पहले बताया जाता है कि आप अपने खानदान के साथ भी आ सकते हैं। उसने मेरे सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया। रात को जब मैं अपने कपड़े बदल रही थी तो अपने ड्रेस के पीछे वाली चेन का हुक नहीं खुल रहा था। शौहर भी घर पर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं खुद ही कोशिश करने लगी। उसी वक्त अचानक शौहर का दोस्त मेरे कमरे में आ गया। मुझे इस तरह परेशान देखकर वो मेरे पास आया और बोला भाभी मैं अपना मसला लेकर यहाँ आया था, लेकिन तुम ही यहाँ मुश्किल में लगी हो। मैंने उससे मदद नहीं मांगी, फिर भी वो आगे आकर मेरे ड्रेस का हुक खोल गया। उसी वक्त मैंने उससे पूछा बताओ क्या मसला हुआ है। वो बोला कि भाभी एक तो गर्मी बहुत हो गई है और इसी बीच में मेरे कमरे का एसी बंद हो गया है, रात भर में एसी के बगैर कैसे सोऊंगा, अब सोने का क्या करें ये तो तुम ही बताओ। हमारे घर में सिर्फ 2 ही एसी है, एक हमारे कमरे में और एक गेस्ट रूम में जहाँ मेरे शौहर का दोस्त सोता था। अब उसे नींद नहीं आएगी, ये सुनकर उसे मुझे अपने कमरे में सोने के लिए कहना पड़ा। उस रात को मेरे कमरे में सोया था। अगले दिन उसकी छुट्टी थी तो हम दोनों घर में ही बैठकर बातें कर रहे थे और अपने अपने मोबाइल चला रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं सोने के लिए लेट गई। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि कुछ ही वक्त में हम अपनी जिंदगी की खास खुशियों का लुत्फ लेने वाले थे। लेकिन उसी वक्त मेरा शौहर कमरे में आ गया और इस तरीके से हमने साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शौहर ने मेरे पास आकर अपने दोस्त को मुझसे दूर किया। उसने मुझसे कहा ये सब क्या चल रहा है, तुम मेरे दोस्त के साथ ये सब कैसे कर सकती हो, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा हाँ नहीं सोचा। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा था जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी? तुम तो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना सुनते ही वो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ ही वक्त गुजारूंगा। तब मैंने उससे कहा कि तुम जिस नजर से हम दोनों को देख रहे हो वो नजर हम दोनों ने जानबूझकर तुम्हारी आंखों में उतारी है ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो मेरे और तुम्हारे दोस्त के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह तुम सोच रहे हो। और हाँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन ली थी और तभी हमने करीब होने का ड्रामा करना शुरू किया। ये सुनकर मेरे शौहर का दोस्त कहने लगा भाभी सही कह रही है, ये सारा प्लान हम दोनों ने जानबूझकर बनाया ताकि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। इतना सुनते ही मेरे शौहर अपने दोस्त को गले से लगाकर रोने लगे। रोते रोते मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे भाई मुझे अब सब समझ आ गया है। फिर उसने मुझे भी गले लगा लिया। यूं मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से पहले ही सुधार लिया। अपने दिमाग को सही इस्तेमाल करके अब मेरी जिंदगी सही रास्ते पर चल रही है, जैसा कि मैं